Hello everyone. Let's continue with the algorithm. And now in this lecture we'll discuss about the merge sort. Okay, so we'll discuss about merge sort. Merge sort. Okay, so mainly we'll discuss about the sorting algorithm. Sorting algorithm that can be the merge sort, quick sort, selection sort, insertion sort, bubble sort, like that, right? So we'll discuss about these sorting algorithms. Let's see what will happen in case of merge sort. We know that there is an array of n elements. There is an array of n elements. Now what we can do? We can divide this array of n elements into two partitions, because array that merge sort is what application of the divide and conquer, right? Merge sort is application of divide and conquer. It means we'll apply divide and conquer. Divide and conquer means we'll have to divide firstly, after that we'll conquer and then combine, right? So here it is n elements. So firstly we'll divide that element in that array into two parts, this one and this one. So here it is n by 2 elements, and here it is n by 2 elements. Then again we'll divide this one into two parts. So here it is n by 2 square elements, and here it is n by 2 square element. And again divide this part into two partitions. One is this one, another one is this one. So again it is n by 2 square, right? n by 2 square element, and so on. कब तक ऐसा करते रहेंगे? जब तक कि एलिमेंट क्या नहीं हो जाते, either there is one element in the array or two element in the array. जब तक एक सिंगल एलिमेंट या दो एलिमेंट नहीं आ जाते तब तक ऐसा करते रहेंगे. ओके, तो ये वाला काम चलता रहेगा जब तक एक या दो एलिमेंट नहीं आ जाते. ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Oh, okay, okay. So let's see an array and we'll try to divide that one, right? So, okay, let's take an array. So here assume this is the array, will contain the element like 50, an array with element 50, 15, 75, and 1, then 20, then 5, then 31, then triple one, then 79. Okay, so these are the element in the array. And what is the index? Index is, here it is 1, here it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, this is what the index. Now how to apply the merge sort? How to do the how to apply the merge sort? So in this case what will happen? Here this is what the array A, and starting index is 1, ending index is 9, right? Ending index is 9. Now what we'll do, we'll find out the middle and we'll divide this array into two partitions, right? So here we'll divide into two parts. So it is 9 plus 1, that is 10 divided by 2. 9 plus 1 divided by 2, that is 10 divided by 2, that is 5. So 5 is middle. Okay, this one is middle. So in this part it will be array A 1 and 5. 5 is the middle one,
Starting index is this one. Okay, what about this one? Next array is what? Next is this one. Okay, and here in this case what will happen? Here it is array A, start from middle plus 1. Middle plus 1 means index number 6 to 9. Okay, that is middle plus 1, that is 6 to 9. नेक्स्ट क्या होगा? फिर सेम सेम कॉल यहाँ पे ये वाली कॉल की, ये डिवाइड किया गया, फिर से वही सेम कॉल होगी, डिवाइड किया जाएगा, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज एरे ए 1 और 5. 1 5 का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1, एंडिंग इंडेक्स इज 5, देन 5 प्लस 1 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3. ये वाला इंडेक्स क्या हो गया? नाउ द मिडल वन. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, 1 1 2 3, 1 2 3, and after that it is 3 to 4 to 5. In this part it is a 4 and 5, this one middle plus 1, then 5 last index. Okay, and in this case what will happen? If we do again two parts, then it is a, array a start with 6. okay, 6 से 9 था ना, 6 to 9 क्या हो जाएगा? that is 9 plus 6, 9 plus 6 that is 15. 15 divided by 2 that is 7.5, and 7.5 means we can take 7, right? So a floor function ले लिया हमने. now assume this is the middle one, right? तो ये वाला मिडल हो गया, ये वाला मिडल हो गया, तो कौन कौन होगा? 6 and 7. so in this there is 6 and 7. and what about this one? in this sub array there will be 8, index number 8 and 9. so here it is 8 starting index, ending index is 9. okay, what about next? again we can divide this one into two parts, right? so here it is array a 1 plus 3 क्या हो जाएगा? that is 4 by 2. 4 by 2 means 2. this is the we can say middle one, right? तो इस वाले पार्ट में क्या आएगा? इंडेक्स 1 एंड 2. सो हियर इट इज 1 एंड 2. नेक्स्ट इधर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? ये मिडल इज दिस वन, सो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3 है ना, मिडल प्लस 1 3. सो स्टार्टिंग इंडेक्स इज 3, एंडिंग इंडेक्स दैट इज ऑल्सो 3. नेक्स्ट कैन वी डिवाइड दिस वन फर्दर? हाँ, सिंगल एलिमेंट तक चले जाएंगे यहाँ पे, सिंगल एलिमेंट, बिकॉज सिंगल दैट वन इज द सॉर्टेड वन, है ना? तो सिंगल एलिमेंट दैट इज द सॉर्टेड वन. तो सॉर्टेड एलिमेंट सिंगल वन हो गया. तो इस वाले में क्या हो जाएगा? दैट इज इन दोनों में से दो एलिमेंट है ना, तो कौन से वाला हो सकता है? एक एलिमेंट ये हो गया, एक में ये वाला आ जाएगा. तो एक साइड में क्या आ जाएगा? ये वाला, और दूसरी साइड में ये वाला. array a index is 1, ending index is 1. this is the another sub array, starting index is 2, ending index also 2. okay, then what about this one? can we divide this one? okay, it is 4 plus 9, 4 plus 5, 4 plus 5 that is 9 divided by 2, 9 divided by 2 that is 4.5 or 5 point something, 4.5. और इसका क्या करेंगे? सीलिंग लेंगे, सीलिंग लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4. तो कहाँ तक? 4 से लेके 4 तक, ये वाला है ना 4. दिस इज द मिडल वन. so here it is a 4 and 4. okay, firstly confirm, is it clear till this part? okay, clear, fine.
सो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे ये स्टार्टिंग इंडेक्स था और ये एंडिंग इंडेक्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज ए 5 and 5, starting and ending index, that is 5. Now it is also over because single element at the leaf node, there will be the single element, and single element is the sorted one. No need to proceed further. What about this one? Again divide into two partitions. One is a, starting index is 6, ending is 7, so it is 6 and 7. तो इनमें से कोई भी मिडल हो सकता है, तो 6 वाले में क्या हो जाएगा, दैट इज ए 6 एंड 6, और 7 वाले इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, एरे ए विद 7 एंड लास्ट इंडेक्स ऑल्सो 7. व्हाट अबाउट रिमेनिंग इज 8 एंड 9. सो एक मिड ये वाला हो गया और नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट हो गया, तो एक सब एरे में क्या आ जाएगा, इट इज ए 8 8, and here it is a 9 9, right? Finally we have divided this array, right? We have divided this array until we are getting the single element in the array, single element in the array. Okay, so these are nothing but function calls. So this is what the function call: c1, call 2, call 3, call 4, call 5, call number 6, call number 6, then call 7 and c7, then c8, c9, c10. Okay, after that c11, 12, c12, c13, c13. ओके, इससे जंप नहीं करना था भाई, इधर पहले इस वाले को करके आना था ना, तो बिकॉज प्री ऑर्डर में होती है कॉलिंग, किस में होगी, प्री ऑर्डर में. सो c11, c12, c13, then c14, c15, c16, c17. Okay, this is what the order of the calling, and order of the calling is what, it is pre order, राइट. तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि एरे को क्या किया, डिवाइड करते गए डिवाइड करते गए, और लास्ट में लीफ नोड पे क्या मिलेगा, दैट इज द सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट क्या होता है, दैट इज ऑलवेज सॉर्टेड. ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट क्या होगा, दैट इज ऑलवेज सॉर्टेड. सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? Clear? Okay, okay, fine. Okay, now what we'll do the evaluation of this one, right? तो हम क्या करेंगे, इनको इवेल्युएशन करेंगे, इसका इवेलुएट करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, फिर इसका इवेल्युएशन करेंगे तो इन दोनों से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इन दोनों के सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, एंड सो ऑन. फाइनली क्या कर लेंगे हम, दैट लार्ज प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट. तो अभी के लिए इन इस वाले का और इस वाले का क्या सॉल्यूशन होगा, लेट्स सी. तो here a, array a with 1 and 1, right? Array a with 1 and 1, or here it is 2 and 2. 2 and 2 is nothing but that array having starting and ending index that is same. It means
here value is 50, so here value for this one, that is 50, and here value for 2, index 2, starting and ending index is 2, that is value is 15, तो इसके corresponding value क्या रहेगी, that is 50, इसके corresponding value क्या रहेगी, that is 15, right? तो ये वाला एक एरे है और ये वाला एक एरे है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। फाइनली क्या करना है, इन दोनों के सॉल्यूशन से क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, 50 और 15, इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, इन दोनों में से स्मॉलर कौन होगा, एरे बनेगा यहाँ पे, तो स्मॉलर वन इज़ 15, 15 यहाँ पे हो जाएगा और 50 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स इवेलुएट दिस वन, a33, a33, starting index is 3, ending index 3, means this element 50, 75, right? So value for this one is 75, तो ये क्या रहेगा 75। अब ये 75 है, इस वाले एरे में क्या है, दो एलिमेंट है ना, तो 75 कहाँ पे आएगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरे 15 एंड 50, राइट, और ये एक एरे हो गया, दूसरा एरे क्या है, ये वाला है जिसमें 75 होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, राइट, मर्जिंग करना है, तो क्या होगा, इसके लिए मर्जिंग प्रोसीजर होगा, मर्जिंग प्रोसीजर होगा, और मर्ज प्रोसीजर क्या है, एक एल्गोरिदम है, और जिसके थ्रू क्या करेंगे, मर्जिंग करेंगे। अब कैसे मर्जिंग करेंगे, आई विल टेल यू लेटर, अभी के लिए मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ कि इस तरीके से मर्जिंग कर लेंगे, है ना। तो अभी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या होगा, पहले 15, आफ्टर दैट 50, और ये क्या हो जाएगा 75, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, 50 एंड 75, राइट। कैसे मर्ज किया है, आई विल टेल यू लेटर, बिकॉज आई विल टेल यू अबाउट द मर्जिंग प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, next we require the solution for this one and this one, so this is what a44, 44 means this element, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, that is 1, okay, और a55, 55 means this one 20, तो इस वाले एरे में क्या होगा, that is 20। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये वाला एरे बनेगा। इस एरे में क्या क्या होगा, इस एरे में 1 और 20, यहाँ पे 1 और ये 20, सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसको और इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, विल गेट 1 फर्स्टली, उसके बाद 15 इस वाले में, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 20 आएगा, आफ्टर दैट आफ्टर 20 इट इज़ 50, आफ्टर 50 इट इज़ 75, ठीक है। तो नाउ दिस एरे इज सॉर्टेड। नेक्स्ट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसका करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। a66 का मतलब 6 पे कौन है, दैट इज़ 5, तो ये 5 हो गया, a66 हो गया। उसके बाद a77, 77 का मतलब ये वाला एलिमेंट 31, तो इस वाले में क्या आएगा 31। इन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये क्या है 5 और ये 31, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट्स सी, तो यहाँ पे इन दोनों में से स्मॉल कौन है 5, तो ये 5 होगा और ये क्या हो जाएगा 31, राइट, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a88 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 111, राइट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, दैट इज 111 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a99, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स इज 9, तो ये 79, इसका 79। अब क्या करना है, इन दोनों में से स्मॉलर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो 79 पहले आएगा, फिर 111 आएगा, मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज दिस एरे, दैट 79 एंड देन 111, ओके। अब इसका सॉल्यूशन मिल गया C12 का और C15 का, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट एरे बनेगा और ये वाला एरे क्या होगा, इट विल बी 5, उसके बाद 5 के बाद कौन आएगा 31, उसके बाद कौन आएगा 79 और उसके बाद 111। ठीक है, फाइनली ये वाला सॉल्यूशन C2 का सॉल्यूशन मिल गया C11 का, इन दोनों के सॉल्यूशन से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, पहले क्या होगा 1, उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्मॉलर कौन है ये वाला 5, उसके बाद इनमें से नेक्स्ट स्मॉलर कौन हो गया, दैट इज़ 15, राइट। और ऐसे ही चेक करते जाएंगे 15, उसके बाद क्या हो जाएगा 15 के बाद 20, आफ्टर 20 दैट इज़ 31, आफ्टर 31 दैट इज़ 50, आफ्टर 50 here it is 75 79, so 75 then 79, after that 75 79 and then it is 111. Okay, finally this array is sorted. Okay, this is what the procedure. Now we have evaluated this one, and what is the order of evaluation? Order of evaluation is always post order. And what is the order of calling? Order of calling is pre order. Okay, so is it clear till this part? ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी इज बट, नेक्स्ट स्टोरी ये है कि जैसे ये वाला क्या है, एक सॉर्टेड एरे है और ये वाला भी एक सॉर्टेड एरे है, इन दोनों सॉर्टेड एरे को क्या करना है, मर्ज करना है, तो ये वाला एरे मिलेगा, है ना। और ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो इनका मर्ज कैसे कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई द merging procedure, right, merging procedure. Now we'll discuss about the merging procedure. So next is merging of two array, merging two sorted array, merging of two sorted sub array. So here it is merging procedure, we'll apply the merging procedure, we'll apply the merging procedure, right. तो इनपुट में क्या रहेगा, इन इनपुट there will be two sorted array, two sorted array, in the input there will be two sorted array, or we can say sub array, two sorted sub array, two sorted sub array. Okay, so assume these are the two sorted sub array. First one is this one, that is 10, 20, here it is 30, then 40. Okay, next sorted sub array is this one, ये वाला नेक्स्ट sorted सब एरे है, दैट इज 11, 11, 21, 31 एंड नेक्स्ट इज 41. तो ये दो सब sorted सब एरे हैं, दीज आर टू सब sorted एरे, है ना। ओके, देन हाउ टू मर्ज दिस वन, हाउ टू मर्ज दिस वन। तो मर्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू टेक अनदर एरे, एक एरे और लेना पड़ेगा, राइट। तो हमें मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और एरे लेना पड़ेगा। लेट मी से हियर इट इज एरे ए, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, एरे बी, राइट।
तो ये array B हो जाएगा. Now how to merge? Let's see the pattern. So there will be the pointer on starting index here, and there will be the pointer on this स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब एरे. तो ये वाला सब एरे होगा, ये सब एरे होगा, इसके यहाँ पे एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर यहाँ पे है, राइट. अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, 10 एंड 11. कंपेयर 10 कॉमा 11. ओके, विच वन इज विनर, राइट. विच वन इज विनर, विनर कौन होगा, जो इनमें स्मॉलर होगा. सो 10 इज द विनर, राइट. 10 इज विनर. जो स्मॉलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, विनर. और जो विनर हो गया उसके पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट. तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, विनर, और इसको स्टोर करा देंगे. 10 विनर है, 10 का स्टोर करा दिया, और इसके पॉइंटर जो विनर हुआ था उसके पॉइंटर को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, राइट. नाउ again comparison between this 20 and this pointer, right. So here comparison between 20 and 11. Now which one is the winner, tell me which one is a winner. 11, yes. So here in this case 11 is the winner, right. 11 is the smallest one in these two elements. So 11 is a winner one, and 11 को क्या करेंगे, इस sorted इस array में, एरे बी में स्टोर कर देंगे, है ना. तो ये एरे बी में हमने स्टोर कर दिया. नेक्स्ट वन, जो सॉर्टेड, जो स्मॉलर था उसके पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट दिस वन. नाउ विल कंपेयर 20 एंड 21. सो हियर इट इज 20 and 21. Now which one is winner? So in this case smaller one is this one, so 20 is winner, right. In this case 20 is winner. सो 20 विनर कर गया, तो 20 के पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, और 20 को स्टोर करा देंगे इस वाले एरे में. नेक्स्ट विल डू द कंपेरिजन बिटवीन दिस 30 एंड 21. हियर इट इज 30 एंड 21. तो आउट ऑफ दीज विच वन इज विनर, इट इज 30 एंड 21. दोनों में से विनर कौन रहेगा, 30 एंड 21. विच वन इज विनर. So 21 is the winner. 21 is winner. Store 21 to this array, और जो विनर है उसके पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे. नाउ कंपेयर बिटवीन दिस 30 एंड 31. 30 एंड 31. Now which one is winner, which one is winner, 30 is the winner, 30 is winner. तो 30 को स्टोर कर देंगे यहाँ पे इस वाले सब एरे, नेक्स्ट एरे में, और पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे. किसका पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे, जो विनर था. विनर कौन था, 30. नाउ विल डू द कंपैरिजन बिटवीन 40 एंड 31. 40 एंड 31. विच वन इज विनर, 31 इज विनर. So store 31 here, right, and increment the pointer of 31. Now compare 40 and okay 40, और यहाँ पे कुछ और था 41. Just a minute, let me change this one. Here it is 41. Compare 40 and 41. 40 and 41. So which one is winner in this case, 41 is the winner, or 40 is winner, 40 is winner. So here it is 40, 40 is the winner one. Now what is the remaining, remaining one is the, आगे पॉइंटर क्या होगा, फिनिश हो गया. इसका मतलब विनर का पॉइंटर, विनर कौन था, ये वाला. इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉर्ट हो चुका है यहाँ तक, और फाइनली ये वाला एलिमेंट बच गया, दैट इज 41, राइट. तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. नाउ लास्ट में क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे, राइट. फाइनली दिस इज व्हाट द merging procedure. This is the merging procedure of two sub array. Now tell me it is clear or not.
clear? Okay, fine. Now let's see the next story. Next thing, that how many how many comparisons are required in this case. So here how many elements are there? Total elements are 4 in this one. 1 2 3 and 4. Here also 4 element. How many comparison we have done? We have done 1 2 3 4 5 6 7 comparison, right? और लास्ट वाले में कोई कंपैरिजन नहीं था, है ना? तो टोटल कंपैरिजंस आर total comparison, yeah Pinky, that may be right. So total comparison, that is equal to 4 plus 4, 4 plus 4 minus 1, क्योंकि लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं होगा. So it is 8 minus 1, that is 7. So total comparisons are 7. Okay, then this is what for 4 elements. What will happen if total elements are n in the array? Then there are 2 सब array, है ना? एक array में कितने एलिमेंट है? टोटल n एलिमेंट है. उसका सब array बनेगा तो कितने होंगे? There will be n by 2 एलिमेंट. तो अज्यूम करते हैं here it is n by 2 elements, right? So here it is n by 2 element. Here also it is n by 2 elements. Then total comparisons are how many? Then total comparisons, we can say n by 2 plus n by 2 minus 1. So n by 2 plus n by 2 कितना हो जाएगा? That is n and minus 1. So total comparisons are n minus 1, which will take order of n time, right? N minus 1 comparison means it will take order of n time. Okay, next thing, assume that this sub array contain m element, and this sub array contain n elements, right? Here it is containing m, here it is containing n element. Then what will be the time complexity? Yes, in that case what will be the time complexity, or what will be the total comparisons? So in that case total comparisons are, it is m plus n minus 1, right? So it is m plus n minus 1. Finally complexity we can say it is order of m plus n. Minus is constant, we can ignore. So here it is order of m plus n, that is the time complexity, right? So finally this is what the merging procedure. Now confirm me it is clear or not. Okay, so in the worst case, merging procedure that may take order of n time, right? In worst case, merging procedure that can take order of n time, or sometime it may be this one also, order of m plus n time. ठीक है? तो अगर n के फॉर्मेट में पूछा गया है तो क्या हो सकता है? मर्जिंग प्रोसीजर टाइम इज ऑर्डर ऑफ n, और
एक सब एरे में फर्स्ट सब एरे, ये क्या है फर्स्ट सब एरे, उसमें इतने एलिमेंट है, ये क्या है सेकंड सब एरे, उस वाले में इतने एलिमेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट इज m प्लस एन, और कंपेरिजन कितने हो जाएंगे, दैट इज m प्लस एन माइनस वन। ओके, सो फाइनली कंफर्म, इज इट क्लियर और नॉट? Clear, okay, fine, good. So